एआई के बारे में हम लोग बात करते हैं और एक चीज जो है हम लोग बोलते हैं कि एआई मतलब अभी कुछ 2 साल पहले 4 साल पहले शायद कोविड में हमने कुछ इन्वेंट किया है, जैसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। हमारा CGPA कम है, but I have really strong technical skills. So, as an industry expert, I'm asking you, what would you say? Would you hire that person, or do you feel no? Grades are somewhere important, and you need to maintain them. 52 कुल मिला के और 3 बैकलॉग है, तो वो हंसने लगे, भाई हमारा तो क्राइटेरिया 52% और 3 बैकलॉग बनता ही नहीं है। स्टूडेंट कोई करियर डिसीजन लेता है, करियर सिलेक्शन के टाइम पे व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स दे मेक एंड हाउ कैन दे अवॉइड देम? Hello everyone and welcome to the Ikshijan podcast, which is brought to you in collaboration with the Nekotachi Podcasting Club. My name is Kasak and I'm really thrilled and honored to be hosting the very first podcast for our club. So the guest that we have for today is an entity which brings in with him the wealth of knowledge, experience and inspiration. He's currently working as the Dean of Branding and Communications in MIT AOE. He's a Cambridge certified instructor, a global entrepreneurship educator, and a certified NLP practitioner, and much more. But at core, he's still an engineer. So before I go on about all the different key roles he's had to play, let me introduce the man himself, Dr. Praful Hatte. Thank you, Kasak. And indeed, a great pleasure for me to be over here in front of you. Yes, sir. So, quickly starting up with the very first question for our podcast. लोग ऐसा कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग के सिवाय बाकी सब कुछ कर सकता है. But you, sir, have proven that myth to be wrong because you have done engineering and much more than that. So, how do you describe the shift in your career from a mechanical engineer background to an instructor in the academic region? It's indeed a very good journey, which I must say about me. I took a degree from COEP as a mechanical engineer and then eventually started working in an industry. इंडस्ट्री के साथ काम करते करते हुए ऐसा लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली एक चीज जो मैंने पाई खुद के अंदर वो ये थी कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है जो ट्रेनर बन सकता है या फिर टीचर बन सकता है। I started training my employees on different kind of programmings, codings and all these things, toolings also. So this academic thing, it was instilled in you from the very beginning of your career. Yes, and in fact I just thought at that moment कि चलो कुछ फील्ड को चेंज करते। Then I shifted my career from industry to academics. And the things worked very well. When I look back 22 years before, then I said, okay, it's a very good decision in fact to become a teacher. That's really great. तो अभी के टाइम पे it's like AI is involved in all the fields, whether it is civil, chemical, computers, computer science, everything, anywhere you see AI is somewhat involved. कहीं ना कहीं उसका participation है. So I had this question: if you could give AI any human trait or emotion or feeling, so what would it be and why? It's a very good question. In fact, AI की बात सब लोग करते हैं। एआई के बारे में बात करेंगे तो एआई इज एवरीवेयर, एज यू सेड, सब जगह पर है, मोबाइल में है, लैपटॉप में, आपकी खुद की जिंदगी में भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो एआई नहीं कर सकता है। किसी को रोना है, एआई नहीं रो सकता है। हंसना है तो खुद को हंसना पड़ेगा। इफ यू वुड लाइक टू फॉल इन लव, यू हैव टू डू इट, इजंट इट? Yes, so everything cannot be done by AI. Now you talk about what emotion can be given to AI. Probably it is all about understanding the feeling of other person, which we as a human being also finding it very difficult to understand what is there in the mind of others. Probably AI can help us to find out what is there in the mind of other people. Might be that can be one age where we are really looking out for. If you are talking about technology as such, आज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि AI cannot replace human being. अगर इमोशन की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अदर, इट कैन बी वन थिंग विच वी कैन ऐड. That is a really great answer. I did not have it even in the top of my mind. So looking back at your resume, we noticed that you've conducted multiple and a lot of workshops in India, abroad, and you've had a lot of experience with major corporations. So I would assume कि you have really good and you've strengthened your networking skills a lot. So
for the sake of people who find it difficult to, reach out to people and have basically hesitations in networking, what advice would you like to give them? How to reach out to other people? Networking is definitely a key. When I start talking about students, then this is the age where students are really required to do a lot of networking. Fortunately, we have AI. Fortunately, we are very good on social media. So I will give two different answers. Number one is you develop your network on social media. You have varieties of platforms. Preferably use LinkedIn, which is a professional networking media which you have. अगर फिजिकल नेटवर्किंग के बारे में हम लोग बात करें तो मैं ये कहूँगा कि कॉलेज में नेटवर्किंग बनता है अपने दोस्तों के साथ, नेक्स्ट लेवल अपने टीचर्स के साथ. कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे कि 4 साल डिग्री करते हैं लेकिन टीचर्स के साथ नेटवर्किंग ही नहीं है. थोड़ा सोच के देखिए कि क्या एक प्रोफेसर आपको अपने नाम से जानता है. अगर नहीं जानता है, यू आर रियली लैकिंग इन नेटवर्किंग. तो यहां से नेटवर्किंग की शुरुआत होती है. फिर कॉलेज लाइफ में तो मस्ती बनती है, प्यार मोहब्बत से लेके झगड़ा ब्रेकअप तब सब बनता है. ये सब जगह पर आपको जरूरत है नेटवर्किंग की. इफ यू आर फीलिंग बैड, if you are feeling happy, you would like to share your moments with others. Yes, sir. Definitely. Rather than sharing on Insta, share it with actual people. And for that, you really need to require network. कॉलेज लाइफ में कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं. उस इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करने से आपका नेटवर्किंग बढ़ता है. Corporate sale, placement sales, these are conducting varieties of events, placement drives. Go there, meet people. There are various expos, there are various gathering events, social events. Do participate into it. Social initiative इस एज में करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट हम कॉलेज के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने कॉलेज के बाहर दुनिया बहुत बड़ी है. अपने कॉलेज के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में कितने सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है. माइट बी ऑर्फनेजेस, माइट बी ओल्ड एज होम्स. जाइए वहां पे जाके देखिए क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इंडस्ट्री को विजिट करना भी काफी जरूरी है. इस एज में अगर बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस को विजिट करते हैं, यूनिवर्सिटीज को विजिट करते हैं, इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, देन इन दैट केस इट रियली मेक्स अ सेंस. नेटवर्किंग में एक और फायदा होता है, वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है. वो चाहे मैनर्स हो, एटिकेट्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, टीम डायनामिक्स हो, लीडरशिप हो, everything gets changed and naturally it will give you a benefit when you appear for an interview. Yes. वहां पे जाते हो तो आपका पर्सनालिटी अलग तरीके से आता है. हाँ सर. तो नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, that was a very well grafted answer. आपने, I think you've covered almost everything that we were looking for as students for networking related issues. आपने इतने सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस, इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. सो इज देयर एनी की इनसाइट और अ हाईलाइट व्हिच यू वुड लाइक टू टेल अस अबाउट? हाँ, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो बहुत ज्यादा किए हैं और उसमें बहुत मजा आता है. वी कुड टेल. यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें होती है. जब भी मैंने वर्कशॉप्स किए वो इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. कभी कभी मेंटरशिप है, कभी कभी हैंड होल्डिंग है, कभी कभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, टेक्निकल भी ट्रेनिंग है और नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स का भी ट्रेनिंग है. मुझे ये कहना है कि अगर ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंट करना है तो इट इज ऑल अबाउट एंगेजिंग योर पार्टिसिपेंट्स एंड आई फील आई हैव डन इट वेरी फेयरली इन अ बेटर वे, क्योंकि वहां पे लेक्चर तो कोई देना ही नहीं है. Most of my workshops are, if I look back, minimum is 8 hours and maximum 5 days. थोड़ा सोच के देखिए, आप स्टूडेंट हो, आप क्लास में बैठे हो, एक टीचर सुबह 8:30 बजे क्लास में आते हैं और शाम को 5 बजे तक उसी टीचर को आपको सुनना है, तो कैसा लगेगा? ड्रेनिंग. हाँ, बहुत. फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. दोनों के लिए. Yes, क्योंकि टीचर को लिए 8 घंटा बात करनी, उन्हीं ऑडियंस को पकड़ के, और स्टूडेंट्स के लिए उसी प्रोफेसर को सुनना है 8 घंटे. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ट्रेनिंग में वो नहीं होता है. ट्रेनिंग में यू हैव अ ट्रेनर इन प्रेजेंस फॉर 8 hours consecutively
लेकिन उसके साथ में आते हैं कुछ मस्ती के मोमेंट, कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटी और सबसे जरूरी बात टेक अवेज। तो हर कुछ एक्टिविटी के बाद में अगर आप कुछ टेक अवेज देते हो जो पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग आपका सक्सेसफुल बनता है। मेरे कई स्टूडेंट्स को और मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने ये कहा है कि आप ट्रेनिंग में अगर आते हो तो आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर। ट्रेनिंग दो तरीके से भी ली जाती है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है और एक फिजिकल है। ऑनलाइन वर्कशॉप जो होती है कम पीरियड की होती है, एंगेजमेंट कम होता है और आपको फीडबैक कम मिलता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। 2020 ऑनवर्ड्स वी हैव सीन आफ्टर द कोविड पीरियड बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स चलते हैं, लेकिन फिजिकल वर्कशॉप जो होते हैं उनमें काफी मजा आती है, मोर एंगेजिंग। वी डायरेक्टली टेक अ फीडबैक, उनकी आंखों में देख के, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है हाँ एंगेजिंग है, मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट दे आर लर्निंग। एक फीडबैक भी लेते हैं कि अगर मेरे पार्टिसिपेंट्स, मान लीजिए कि 100 पार्टिसिपेंट्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने सीखा है कुछ या नहीं सीखा है, ये कैसे पता करें? क्योंकि हमें तो लगता है मैंने बोल दिया तो उन्होंने भी सुन लिया तो समझ लिया तो इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउ टू कंडक्ट ट्रेनिंग, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग लिया था मैंने, तो उसमें भी एक मजा आया। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू एंश्योर दैट यू एंगेज योर स्टूडेंट एंड हाउ टू एंश्योर दैट यू एंगेज योर पार्टिसिपेंट्स। कभी स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग है, कभी पार्टिसिपेंट के लिए। तो देयर वर मल्टीपल आंसर्स। वन ऑफ द आंसर विच इज एब्सोल्युटली राइट इज आस्क क्वेश्चंस, आस्क राइट क्वेश्चंस एट राइट मोमेंट। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछ के हम लोग पता कर सकते हैं कि ऑडियंस सही जा रहे हैं कि नहीं। एक ओपन एंडेड है और एक क्लोज एंडेड है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस किस मोमेंट पे पूछना है, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग आता है। और अगर आप एज बीइंग अ ट्रेनर अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल। पार्टिसिपेंट्स को भी मजा आता है कि हमें भी पूछा गया है और हमें ये पता चलता है एज अ ट्रेनर कि वेदर दिस पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। यस, ऑल्सो फॉर दोज हु डू नॉट नो, आपका मेन डोमेन अभी के टाइम पे इट इज AI रिलेटेड एंड यू वर्कड सिंस late 90s into you're very much into the AI related domain. So any key achievement or instances you would like to tell us about? हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक जो मेरे जीवन में घटा है वो मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। AI के बारे में हम लोग बात करते हैं और एक चीज जो है हम लोग बोलते हैं कि AI मतलब अभी कुछ 2 साल पहले 4 साल पहले शायद कोविड में हमने कुछ इन्वेंट किया है, जैसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा पीछे लेके चलेंगे, पीछे जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे कुछ 1996, 97, 98 आई वॉज वर्किंग विद द इंडस्ट्री एंड ऑन अ शॉप फ्लोर। सो देयर वाज सीरीज ऑफ मशीन्स, सारे के सारे कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन से ऑटोमेशन में चलते हैं एंड दोज मशीन्स वेर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। Okay. I was working on a shop floor. Basic role was to handle the production routine activities. एक दिन ऐसा लगा कि चलो कुछ इंटेलिजेंस डालते हैं मशीन में, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कोडिंग एंड आई विद इन फर्स्ट 3 months आई डेवलप वन अल्गोरिदम कंप्लीटली इनटू अ कोडिंग, जहां पे मशीन ये समझ सके कि जो ऑपरेटर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो गलत जा रहा है। Okay. सोचिए 1996 की बात है और मशीन सोच रही है, देख रही है कि ऑपरेटर गलत जा रहा है। तो सक्सेसफुली डेवलप्ड, इंप्लीमेंटेड, वी ट्राइड अ लॉट, चलो कुछ गलती करके देखते हैं, कुछ मस्ती करके देखते हैं, एंड इट वर्क वेरी वेल। मशीन वॉज नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद में फिर चलता गया कि चलो मशीन के ऊपर जो टूल्स है उनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो द ऑपरेटर यूज टू चेक द टूल्स फ्रिक्वेंटली एंड दे यूज टू रिप्लेस। काफी टाइम जाता था। तो मैंने कोडिंग ऐसा किया कि मशीन यूज टू सेंस कि अरे हाँ अभी टूल बदलने हैं, अभी टाइम आ गया है, तो मशीन यूज टू गिव अलार्म कि भाई टूल बदलो, टूल नंबर 22 चेंज इट। Okay, ऑटो डिटेक्शन। बिल्कुल ऑटो डिटेक्शन, और ये भी डिटेक्ट करता था कि मैंने अलार्म तो दिया, तुमने किया कि नहीं किया, वो भी डिटेक्शन है। बैक इन द 90s। हाँ, बैक इन द 90s मशीन डिटेक्ट करता है कि आपने वो टूल चेंज किया है कि नहीं किया है। फिर हम लोग मशीन्स को अलग अलग पैरामीटर्स में, हाई स्पीड में, लो स्पीड में, हाई कटिंग
पैरामीटर्स में हम लोग चलाते थे, तो मशीन के ऊपर भी नेचुरली लोड आता था। तो हमने मशीन को भी एक ऐसा ट्रेन कर दिया कि गिव मी योर हेल्थ कंडीशन। हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मशीन की हेल्थ क्या होती है, उसके वाइब्रेशन, नॉइज, पावर कंजम्पशन, सम मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, सारे पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिए एंड इट वर्क वेरी वेल। मशीन यूज्ड टू गिव अस, मेरी कंडीशन ये है भाई रुक जाओ। तो बैक इनटू दोस 90s एरा आई डिड एवरीथिंग एंड इट वाज समथिंग लाइक अ मिरेकुलस। अरे हाँ कुछ तो है। बट इवेंचुअली व्हेन आई शेयर्ड इट विद अदर्स, people said nothing is not going to work like that. थोड़ा 5 साल आगे जाएंगे. In 2002, I presented this research work in front of all eminent people in one conference. You know what happened? Very surprising thing. All the people who were listening to me, they said 2 reactions. One, अरे सो जाओ यार, क्या बात कर रहे हैं, और दूसरा शायद फेंक रहा है। इंटेलिजेंस होता है लेकिन ह्यूमन का होता है, मशीन का थोड़ी होता है। एंड दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्रिएट करो आर्टिफिशियली, ऐसा होता ही नहीं है। बट इवेंचुअली देयर वर फ्यू पीपल हु वर हैविंग अ वेरी गुड इंडस्ट्री कनेक्ट। दे सेड ओके लेट अस फाइंड आउट मोर। सो दे टुक मी टू वन सेपरेट ऑफिस एंड दे स्पेंड मोर देन 2 hours विथ मी। पूछा कि एग्जैक्टली चलता कैसे है, इज देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहने की बात यह है कि अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे। कुछ सालों पहले भी कुछ लोगों ने किया, मैंने किया, हाँ, लेकिन कुछ और लोगों ने कुछ और भी किया होगा, सिर्फ उसको नाम नहीं था। उसमें आई स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग एंड मशीन वाज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट द मशीन स्टार्टेड लर्निंग ऑन इट्स ओन एंड देन आई पुट अप दिस एआई कोड इनटू इट। आज हम लोग बात करें एआई की, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारे घर में भी तो एआई था। आज भी हमारी माँ हमें समझ में आती है, माँ को समझ में आता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। फुल ऑफ एआई। घर में अगर कोई एआई वाली चीज है तो हमें हमारे मम्मी पापा है, बिल्कुल समझ में आता है। क्लासिक एग्जांपल। ओके, अब ना थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक करते हैं। हमारा टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है, तो उनके जो मेजर कंसर्न्स होते हैं, लाइक यूजुअली व्हिच इज अ टॉप नॉच थिंग पीपल से, स्टूडेंट्स से, इज दैट हमारा सीजीपीए कम है बट आई हैव रियली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स। तो as an industry expert, I'm asking you, what would you say? Would you hire that person, or do you feel no, grades are somewhere important and you need to maintain them? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको लगता है कि हाँ स्किल है तो शायद मुझे जॉब मिलेगा। दूसरा एक थॉट प्रोसेस चलता है, हाँ मेरे पास सीजीपीए 9.5, तो मेरा 9.5 सीजीपीए तो मेरा पैकेज तो 15 लाख का बनता ही बनता है। 2 आंसर में बिल्कुल यहां पे देना चाहूंगा। नंबर 1, सीजीपीए रैंकिंग ग्रेड्स क्यों चाहिए? आपको इसलिए चाहिए कि ताकि एक दरवाजा खुल सके। किस चीज का दरवाजा? द दरवाजा ऑफ गोइंग इनसाइड दैट केबिन वेयर द इंटरव्यूज आर बीन कंडक्टेड। Because many of the industries, they have a limit. Okay, I need a CGPA of say 7.5, 8.5, 9, something like that. No backlog, no live backlog. All these are the first filters. तो academic grade pointer अच्छा होना जरूरी है अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद skills बहुत जरूरी है। I recollect one incident, शायद 13 या 14 साल पहले का है। आई वॉज वर्किंग एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद सम अदर कॉलेज। वहां पे एक ऑटोमोबाइल वाली कंपनी आ गई और उन्होंने प्लेसमेंट ड्राइव रखा था। प्लेसमेंट ड्राइव रखा तो दे पुट अप फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज मिनिमम फर्स्ट क्लास। अब तब तो ग्रेड पॉइंटर नहीं था, फर्स्ट क्लास मतलब 60% थे। तो 60% में जितने स्टूडेंट्स आते हैं 60% एंड अबो, तो उनको शॉर्टलिस्टिंग किया गया। तो उनके भी प्रेजेंटेशन, सबसे पहले पीपीटी आता है तो पीपीटी किया, फिर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और थोड़ा ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, उसके बाद में इंटरव्यूज थे। तो बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई टुक अ चांस, घुस गया अंदर, उनको बोला कि आप इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी से हो, मेरे पास एक स्टूडेंट है कि जो ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा पैशनेट आदमी है, लेकिन उसके मार्क्स कम है, 52 कुल मिला के, और 3 बैकलॉग है।
तो वो हंसने लगे, भाई हमारा तो क्राइटेरिया 52% और 3 बैकलॉग बनता ही नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप उसको मत लो, लेकिन एक बार मिल तो सकते हैं ना। बिल्कुल मिल सकते हैं। बोले कि आप इतनी इंसिस्ट कर रहे हो तो चलो बुला लो उसको। वो मेरे केबिन में मैंने उसको बिठाया था, उसको अंदर लेके आया और फिर मैंने बोला कि आपका एक जो स्केचबुक है, स्केचबुक निकालो और दिखाओ कि आपने ऑटोमोबाइल में किया क्या है। बिलीव मी, उनका जैसे स्केचबुक खोला उसमें सारे के सारे ऑटोमोबाइल, अलग अलग कार के डिजाइन थे, पेंसिल स्केचेस। He was having more than 275 sketches of a car. तो उन्होंने बोला क्या बात है, 275 डिफरेंट स्केचेस, बड़े बड़े स्केचबुक्स भरे हुए, पूरी बैग उसकी स्केचबुक से भरी हुई है। बोला कि ये तो बड़ी बात है, 275 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स मैंने पहली बार देखा है। फिर मेरे तरफ बोले कि ये स्टूडेंट में कुछ दम है, तो हम तो इसको इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन इसको टास्क जरूर देंगे। 2 तरीके की कार इनको डिजाइन करनी है, एक स्मॉल कार है और एक एसयूवी है, बड़ी कार। रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली अगर ये 1 घंटे में हमको स्केच करके दे सकता है तो शायद कुछ सोचेंगे। तो उसी ऑफिस में एक साइड में एक टेबल था, उसको वहां पे बिठाया और दोनों जो केस स्टडीज थे उनको बताया। उन्होंने बोला हाँ 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 35 मिनट्स दोनों कार उसकी एग्जैक्टली एज पर रिक्वायरमेंट रेडी थी। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि देखिए ये 2 कार उन्होंने डिजाइन की है और ये दोनों कार ऐसी कि हमारे डिजाइनर नहीं बना सकते, इतनी अच्छी इन्होंने डिजाइन की है, इनका पर्सपेक्टिव काफी अलग है। तो हम इनको है ना जॉब ऑफर डायरेक्टली करेंगे विदाउट एनी इंटरव्यू, भले इनके बैकलॉग हो। थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है, हमारा जो पैकेज है वो 3.5 लाख का है, हम इनको 3.5 लाख नहीं देंगे। तो मैंने बच्चे की तरफ देखा, वो तो बोला जो मिलेगा मिलेगा। उसके मन में शायद चलता रहेगा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो मिला वो भगवान की दया से मिल गया। तो उन्होंने बोला 3.5 नहीं देंगे, हम इसको देंगे 7.5। और 7.5 में सिलेक्ट हो गया विथ 3 बैकलॉग्स। कहने की चीज ये है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्किल जरूरी है क्या नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्किल है और एकेडमिक्स थोड़ा सा प्लस माइनस भी है तो भी कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड यू शुड बी एबल टू शोकेस कि आपके टैलेंट्स क्या है, आपके स्किल्स क्या है। हाँ, एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट है जिसकी मार्क्स कम है, स्किल अच्छे है, तो वो क्या कर सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल बोल दिया कि हाँ एज अ स्पेशल केस मैंने परमिशन दे दिया। Hundreds of students are there in every branch and thousands of students are there in any college. वो कैसे करेंगे फिर? अभी यहाँ पे आता है सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, जो आपने पूछा था। Keep on sharing. I have seen many students who have kept on sharing their achievements, their skills on LinkedIn. And many of the hiring is done based on social media and based on personal connect. अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। दिस इज ओनली 50% ऑफ हायरिंग, 15% 85% ऑफ द हायरिंग इज डन इन इंडिया विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो सोचिए अगर 85% इतना बड़ा मार्केट है तो स्टूडेंट्स को कैप्चर करना चाहिए यार। राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर शोकेस योर स्किल्स। एक अपने ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है, आपके स्किल के ऊपर पूछा तो जरूर बताना चाहूंगा। आई हैव सीन हिम bunking the lectures most of the time, not completing assignments in time. So one fine day I called him. What is this? Your assignments are not in time, your project is getting delayed, your attendance is very less. So उन्होंने बोल दिया कि मैं आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर वन अमेरिकन कंपनी। Look at that student, a student who is in 3rd year working as a freelancer for an American company. This is really achievable. अभी उनके लिए जॉब मांगने की जरूरत नहीं है। He might be, when he gets his degree, he will be able to offer the jobs. इसीलिए स्किल का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो सर आप एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी है, वन मोर टैग एडेड टू योर CV। तो आपने बहुत सारे ऐसे करियर काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए होंगे, दिए भी होंगे, पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब कोई स्टूडेंट
कोई करियर डिसीजन लेता है करियर सिलेक्शन के टाइम पे, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स दे मेक एंड हाउ कैन दे अवॉइड देम? इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। एक तो है कि एक छोटा सा जो मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल, वो एग्जांपल देना चाहूंगा और फिर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कहाँ पे गलती होती है। श्योर सर। सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट है, था मतलब 15 इयर्स बैक, 15 साल पहले, और उसका एकेडमिक्स बहुत खराब चल रहा था। तो बोला क्या चीज है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा ठीक ठाक था, सेकेंड ईयर में काफी खराब है। और उसकी एक दोस्त है, उसका एकेडमिक्स काफी अच्छा है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, ऐसे स्टेयरकेस पे बैठा था, मैंने बोला चलो कम इन मेरे केबिन में आ जाओ। तो उससे बात की कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा एकेडमिक्स बहुत खराब है। सेमेस्टर नंबर 3 हो चुका है, 5 कोर्सेस में से 5 के 5 डाउन है, 5 के 5। सेमेस्टर नंबर 4 में एंट्री की है विद द बैकलॉग्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने बोला कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, फर्स्ट ईयर कॉमन था तो चल गया, लेकिन सेकेंड ईयर में जो है ना, वो थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, काफी ज्यादा टेंजेंट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ऐसी क्या चीज है, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो एडमिशन क्यों लिया, कुछ दूसरा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वैसे आपका इंटरेस्ट क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट जो ना स्केचिंग में बहुत अच्छा है, तो मुझे बचपन से ऐसा लगा कि मैं स्केचिंग में या फिर मैं कुछ आर्ट्स में करूंगा या फिर मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, स्केचिंग बहुत अच्छी है। मैंने बोला बढ़िया बात है, फिर तो आपकी स्केचिंग अच्छी है, आर्किटेक्ट बनना है, तो यहां पे कैसे फंस गए फिर। बोला हाँ सच में आपने बोला सर वही बात है, मैं फंस गया। बोले कैसे, उसकी वजह से। उसने बोला मैं जिस कॉलेज में जाऊंगी तुम भी मेरे साथ आना, उसने मैकेनिकल में एडमिशन ले ली, मैंने भी ले ली। अब वो टॉप कर रही है और मेरे बैकलॉग्स लग रहे। कहने की बात है कि 15 साल पहले स्टोरी है, लेकिन आज भी चक्कर ऐसा है कि डिसीजंस आर नॉट टेकिंग वेरी वाइजली। कभी दोस्तों के साथ में मिलके, या फिर कभी एक पीयर प्रेशर होता है, हाँ यार चलते इसी कॉलेज को चूज करेंगे, इसी ब्रांच को चूज करेंगे, या फिर किसी ने बोल दिया कि हाँ बड़ा स्कोप है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, बड़ा स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बड़ा स्कोप है कॉमर्स में। तो स्कोप वाली जो चीज है ना, ये भी बच्चों को डिफाइन करना नहीं आता है। तो स्कोप के चक्कर में, पीयर प्रेशर के चक्कर में, सोसाइटल प्रेशर के चक्कर में, या फिर कभी कभी पेरेंट्स के फोर्स की वजह से भी एक करियर के डिसीजन लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर करियर का डिसीजन लेना, तो एक चीज बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है तो ही आपको उस फील्ड को चूज करना है। एक स्टूडेंट है जिसके साथ में मैं लास्ट ईयर अपने कॉलेज में आया था। मैंने उसको पूछा कि कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, 12th एग्जाम दिया था। तो उसने बोला कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है। तो बोला हाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो बड़ी बात है, तो क्यों लेना है। बोले मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने किया क्या है अब तक, एक 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम बोल दो। उन्होंने बोला यार सी या डी से ऐसा कुछ शुरू होता है। मैंने बोला आपको सी या डी में फर्क नहीं पता चल रहा है, आप कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा पाइथन के बारे में सुना है? नहीं, क्या पाइथन नहीं, आई डोंट नो। तो ये हालत है, मतलब सी लैंग्वेज पता नहीं है, पाइथन लैंग्वेज पता नहीं है, कंप्यूटर कोडिंग पता नहीं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी भी नहीं है, और एक जगह पे अगर बैठना है तो 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते, और 12 घंटे आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना कंट्रोवर्शियल थिंग्स है। तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बोले कि मेरा इंटरेस्ट है, और उसी के बेस पे डिसीजन लिए जा रहे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया रहेगा कि इंटरेस्ट है या नहीं है, सच में है कि नहीं, ये कैसे पता करें। कोई तो बोलेगा कि मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, कहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी में। तो उसको भी मैंने पूछा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में क्या फर्क होता है, कि बोले नहीं एक ही होता है। अच्छा एरोस्पेस, वो भी वही होता है। इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट वो चीज है जिसमें आप कुछ सालों से, कम 3 साल वाला पकड़ लो, आप 3-4 साल से आप कुछ ना कुछ उस एरिया में कर रहे हो, विच इज ओवर एंड अबव ऑफ योर एकेडमिक्स। अगर कंप्यूटर में कोई बच्चा बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में अगर पाइथन कोडिंग सिखाई है, तो शायद उसने साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ सीखा हो, डेटा साइंस के बारे में कुछ सीखा हो, शायद उसको ये तो पता हो कि एक डेवऑप्स करके कोई चीज होती है।
मोंगोडीबी किसको कहते हैं, छोटी छोटी चीजें दोस्तों एटलीस्ट नॉलेज होना जरूरी है। तो डिसीजन अगर हम करियर के बारे में कहेंगे तो इंटरेस्ट, सच में उसमें कुछ कुछ काम किया है तो, और दिल के अंदर से अगर आवाज आती है तो ही आप करियर के बारे में सोच सकते हैं। एक और एग्जांपल याद आया, बहुत सारे एग्जांपल है, करियर काउंसलिंग इतने सालों से कर रहे हैं तो एक एग्जांपल है कि एक फादर एंड हिज सन दे मेट मी, और कई सालों के बाद में ऐसे कोई फादर एंड सन आए थे कि जिनमें उनका कहना था कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बनेगा। तो ये तो बड़ी चीज है, सिविल इंजीनियर बनेगा। तो मैंने उसको पूछ लिया, आपको सिविल इंजीनियर ही क्यों बनना है, आपके पिताजी कह रहे इसलिए? बोले हाँ। तो आपको क्या बनना है? बोले सिविल इंजीनियर। ये तो एक आपके पिताजी के कहना है सिविल इंजीनियर। ने बोला मुझे भी वही सिविल इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस है सिविल इंजीनियरिंग का, और मैं भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करूंगा, कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस रहेगा, ये साइड वो साइड अलग अलग जगह पे मैं जाऊंगा। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपकी तरफ देख के आपका वजन कितना है? इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है कि आपका वजन कितना है। बोला 35 है। तो 35 kg आपका वजन है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और दुबले पतले से, ज्यादा हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाओगे, और फिर भी काम कहां पे करना है? साइड पे काम करना है। सोचिए थोड़ा, उस चीज को करने के लिए आपके पास इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन बॉडी क्या आपको फिटनेस दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो कैसे कर पाओगे काम? अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं करियर सिलेक्शन के। तो इंटरेस्ट एक चीज होगी, फिजिकल फिटनेस एक चीज हो गया, मॉनिटरी कंडीशंस, अगर पैसा है तो उस चीज को कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल कैन बी गिविंग नीट एग्जामिनेशन। लाखों बच्चे नीट एग्जामिनेशन दे रहे, कितने बच्चे सक्सेसफुल हो रहे। आईआईटी जेई के लिए 25 लाख से ऊपर बच्चे अभी इस साल शायद एग्जाम दोगे। क्या उसमें से 25,000 भी आईआईटी में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, नॉट इवन 1%। तो ये भी देखना जरूरी है। 10वीं कक्षा में 52% है, 12th में 51% है, और बच्चा सोचता है कि मुझे आईआईटी जाना है। सोच बड़ी होगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है उतना पढ़ना, वहां तक जाना और आईआईटी में सक्सेसफुल बनना? अगर नहीं है तो उस करियर को छोड़ो, दूसरा आगे कुछ कर सकते हैं। हर करियर में स्कोप है, प्रोवाइडेड यू हैव अ पैशन, यू हैव अ इंटरेस्ट, and your physical, mental and economic condition supports you. Okay. Well, for all those who had that doubt, I'm pretty sure sir was able to handle all of it. और जो लोग still confused है, भाई keep a hand on your heart and all is well. All will be well. All is well, all is well, all is well. All will definitely be well. And ठीक है. Another major problem, this is not concern for students, it's a concern for educators. और ये students की सबसे बड़ी दिक्कत है। वो लोग क्या करते हैं, you give them an assignment, ठीक है, इस डेडलाइन तक complete this, वो डेडलाइन से आधा घंटा पहले बैठेंगे, they'll open ChatGPT and the whole assignment is ready in just a few clicks, uploaded, done. Now we have educators, fortunately we have educators and instructors whose experience is almost equivalent to our age. So they know what children are doing. So, but still, for those educators, how would you tell them कि this is how you deal with these issues? जहाँ पे बच्चे अपनी पूरी की पूरी assignments और काम tools, AI tools के through outsource कर रहे हैं। बहुत सारी स्टोरीज है इनफैक्ट इसके ऊपर भी, एआई टूल्स के ऊपर। लेकिन मैं इनिशियली में कुछ टिप्स देना चाहूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा एजुकेटर्स के लिए, तो एजुकेटर्स के लिए सबसे पहली टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सॉफ्ट कॉपी वाला असाइनमेंट दे रहे हो जहां पे कुछ टेक्स्ट है, लिखना है, तो उस टेक्स्ट को आप किसी भी एलएमएस प्लेटफॉर्म जैसे कि मूडल हो, वहां पे अगर ले रहे हो तो वहां पे उस चेक पॉइंट जरूर डालिएगा कि जो एआई डिटेक्शन करेगा। एआई डिटेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, उसका आप जरूर यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, एआई रिटर्न अगर असाइनमेंट है तो तुरंत पकड़े जाते हैं। अभी 2 महीने पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। देयर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की बैच चल रही है, उनको मैंने असाइनमेंट दिया है 4 बच्चों का एक ग्रुप करके, और उनको मैंने बोला कि आप यू कैन मूव अराउंड, जाओ, आधे घंटे के बाद वापस आओ, और आपको लिखना है, यू हैव टू डू पेन पेपर।
लिखना है 10 प्रॉब्लम्स जो उस एरिया के लिए आपने ऑब्जर्व किए। शायद वो लाइब्रेरी वाले प्रॉब्लम है, कैंटीन वाले प्रॉब्लम है, कॉलेज के प्रॉब्लम है, पार्किंग के प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम आपको लिखने हैं। आधे घंटे के बाद सारे स्टूडेंट आए और उसमें से एक ग्रुप था, उन्होंने मुझे दिखाया कि ये प्रॉब्लम्स है, और जिसने लिखा है उसको मैंने पूछा कि किसने लिखे, मैंने लिखे, उसको तुरंत मैंने पनिशमेंट दे दिया देखते ही साथ। इसका रीजन ये है कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स उन्होंने लिखे थे सारे एआई जनरेटेड थे। एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट तुरंत पकड़ी जाती है। अभी स्टूडेंट्स आर आल्सो स्मार्ट, व्हाट डू दे जनरेट एआई बेस्ड असाइनमेंट एंड देन दे डू ह्यूमनाइज। तो एक लेवल ऊपर चले गए, तो ह्यूमनाइज को भी पकड़ सकते हैं। रिमेंबर, टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू फाइंड आउट कि व्हाट इज बीइंग गेटिंग ह्यूमनाइज्ड। एक और इंसिडेंस है, हैंड रिटन असाइनमेंट लिखने के लिए बोला था, और एक स्टूडेंट था कि जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी थी, और इतनी अच्छी थी कि उस असाइनमेंट को 2 बार पढ़ना पड़ा। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में असाइनमेंट की कैसे? तो नेचुरली उसको बुलाया गया, मैंने क्लास में बोला कि ये बहुत ही अच्छी असाइनमेंट आपने लिखी है, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, प्लीज होल्ड दिस मार्कर, उसमें से 2 लाइन बोर्ड पे लिख के मुझे दो। एंड इमीडिएटली एग्रीड कि ये सारा का सारा एआई जनरेटेड है, हैंड रिटन मैंने नहीं किया है। तो मैंने उसको बोला कि ये हैंड रिटन आप एआई जनरेटेड है, अभी आपका असाइनमेंट ये है कि पूरे क्लास को बताना कि ये करते कैसे है आप। दिस इज द असाइनमेंट। आउटसोर्सिंग, दिस इज हाउ यू डू इट। और अभी देखिए एक और चीज एजुकेटर के लिए आपने बोला कि एजुकेटर को क्या टिप्स है, तो एक और चीज मैंने की थी पिछले साल। तो मेरे क्लास में कुछ 76 स्टूडेंट थे, तो मैंने 76 अलग अलग थीम उनको दिए जो उनको पढ़ना है, और असाइनमेंट किस तरीके से करना है, 100% एआई फ्री। वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो मैंने उनको एक टॉपिक दिया है, टॉपिक के ऊपर उनको पढ़ना है और उनके दोस्त की हेल्प लेनी है, मोबाइल पकड़ना है और मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट करना है। एक स्टूडेंट को एक थीम दिए, वो स्टूडेंट उस थीम को उनको वीडियो में एक्सप्लेन करना है। तो अभी देखिए एआई तो कहीं भी नहीं है, बाहर खड़े रहना है या फिर कुछ मशीन के सामने खड़े रहना है, एक्सप्लेन करना है उस थीम को। तो असाइनमेंट कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जहां पे एआई कोई मायने नहीं रखता है, आपको खुद को बोलना है, गिव सेपरेट असाइनमेंट, गिव थीम बेस्ड असाइनमेंट, गिव द असाइनमेंट्स वेयर स्टूडेंट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, और you can ask the student to make use of AI very effectively to arrive at an answer, read that answer and then summarize. ये भी तो हो सकता है। ये महीने में मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में बच्चों को बोल दिया, यूज ऑफ मोबाइल इन माई लेक्चर इज स्ट्रिक्टली अलाउड। अलाउड, दैट इज शॉकिंग। अगर मोबाइल नहीं है तो लेक्चर में नहीं आना है। एट एवरी 10 minutes I ask them, take out your mobile phones and do this work. I keep on sharing. सोशल मीडिया पे डालते हैं, कभी व्हाट्सएप पे डालते हैं, ये डायग्राम में चलो फटाफट बन जाओ, इसके ऊपर क्या आपको लगता है, आंसर करो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का टुकड़ा हमको दिया, रिफ्रेम अ प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, गो टू गूगल एंड आस्क गूगल कहां पे क्या हो रहा है, जेमिनी को पूछो। अगर नहीं आ रहा है गूगल का यूज करना, तो आई विल टीच यू। देयर आर मोर देन 300 ways बाय विच गूगल कैन बी यूज्ड। और हमको तो ऐसा लगता है कि गूगल में शायद हम लोग कुछ लिखेंगे तो आंसर करेगा, वन वे। इट्स नॉट लाइक दैट। 300 ways, उसमें से 3 भी बच्चों को अच्छी तरीके से आ गए तो बड़ी बात है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसमें कई ज्यादा आंसर आते हैं कि इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स सो दैट दे विल फील हैप्पी, गिव देम सर्टेन टास्क वेयर दे विल बी एबल टू फिजिकली डू इट, गिव देम असाइनमेंट्स वेयर रादर देन एआई दे विल बी हैप्पी टू डू दैट असाइनमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव गिवन असाइनमेंट्स वेयर आई वेंट टू लाइब्रेरी, I took one back, 6-7 बुक्स से लाइब्रेरी से उठाए, उनको दे दिए ग्रुप्स को। हाँ, ये बुक्स हर एक ग्रुप को एक एक बुक दिया जाएगा, इस बुक में से इतने पेज नंबर आपको पढ़ने हैं, और तुरंत वहीं पे समराइज करके हमको समझाना है कि आपने क्या पढ़ा। एंड दिस हैज टू बी एक्सप्लेन टू ऑल द क्लास। यू विल नॉट बिलीव आई डिड दिस ऑन आवर लॉन आल्सो। माय लेक्चर्स वेयर देयर ऑन द लॉन। एवरीवेयर इट कैन बी, everywhere it can happen. So many ways to engage the students, I will say. I'm sure अभी जो लोग देख भी रहे हैं और जो यहाँ बैठे भी हैं, we are all feeling the need to attend some of your lectures because really आपका your way is very different from the conventional way is what I'm able to understand. And all of us have been studying here for what हम लोग 12-13 साल का एजुकेशन एक्सपीरियंस तो लेकर आए हैं।
तो फॉर 12 years यू बीन ट्रेन्ड इन अ वे कि नहीं, क्लास में बैठे हो, दिस इज द डेकोरम, यू कैन नॉट यूज दिस, यू कैन नॉट यूज दिस, दिस इज टू बी डन. बट ऑन द अदर हैंड आपका वे इट इज वेरी डिफरेंट. सो नाउ आई फील द नीड टू बी लर्निंग फ्रॉम हिम. And I will be happy if you can attend my lecture. Please, please, college do that. But okay, moving on to next questions. So, for all those who are not aware, Sir here has filed for 11 patents and he has published 20 plus research papers. So, इन सब ये सब सर करने में बहुत ज़्यादा टाइम और डिवोशन जाता है. तो what advice would you like to give for the inventors who are currently in that process? तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि दिस इज हाउ यू नो overcome competitors and make your job way more authenticated with the help of AI? Of course, it's a very, very appropriately asked question at this moment where students are struggling with their academics. They feel that, okay, I got this marks, I am happy for that. लेकिन अगर हम लोग इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, रिसर्च पेपर है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, पेटेंट है, तो मैं एक टिप्स जरूर देना चाहूंगा यहाँ पे कि फोबिया के आगे जीत है. लोग एक कुछ ऐसी हवा फैला रहे हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मौत है. फोबिया के आगे जीत है. तो ये फोबिया है कि अरे हाँ हम लोग पेटेंट फाइल नहीं कर सकते, हम लोग तो मतलब रिसर्च पेपर वगैरह हमारे बस की बात नहीं है. हाँ किसी ने कंपलसरी कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर तो देखेंगे कहीं तो भी जुगाड़ मार के. लेकिन ये सारा फोबिया है. पेटेंट फाइल करना, इनोवेशंस को आगे लेके जाना बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल. मेरे सामने ये माइक है, माइक का सिर्फ मैंने शेप चेंज कर दिया, इसमें 1-2 फीचर ऐड कर दिए, मैंने पेटेंट फाइल कर दिया. सो सिंपल. उसके लिए कुछ बड़ी 30 मार्क वाली चीज कोई करने की जरूरत नहीं है. अब बची बात रिसर्च पेपर की, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि आप कॉन्फ्रेंस पेपर से शुरू कीजिए. कॉन्फ्रेंस में जरूर जाइएगा राइट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर, so that you develop your confidence to speak in front of a crowd, in front of people, in front of experts. Share your innovation. कोई डरने वाली बात है नहीं. जितना आपने छोटा सा काम किया है उसी को प्रेजेंट करो कि हाँ ये मैंने किया है. Let the experts say कि okay you can do a little bit more over here. थोड़ा सा हटके आप कुछ और चेंज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट लेवल पे अब जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हो, then you can go for journal publications. जर्नल पब्लिकेशंस के लिए आपके पास तब तक एक पोटेंशियल तैयार हो जाता है कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे. एंड योर प्रोफेसर्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू. और यहाँ पे बात करेंगे एआई की. आपने पूछ लिया था कि एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. एआई का इस्तेमाल पेटेंट ड्राफ्टिंग में, रिसर्च पेपर में, कॉन्फ्रेंस पेपर में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज फोर्ज्ड और प्लेगराइज्ड और अनएथिकल प्रैक्टिस. लेकिन हाँ एआई का इस्तेमाल आप अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं. मान लीजिए कि एक रिसर्च पेपर है, 25 पेजेस आपको पढ़ना है. 25 पेजेस को पढ़ना कहां से आपको आएगा? तो एआई टूल है आपके लिए. पेपर अपलोड करो, उसको बोलो समराइज दिस, तो आपको एक पैराग्राफ में समराइज करके देगा. जनरेट ऑडियो, तो आपको ऑडियो भी देगा. अगर आप ड्राइव करते वक्त सुनना चाहते हैं, शाम को सुनना चाहते हैं, इस ऑडियो इज आल्सो देयर. एक डायग्राम है जो समझ में नहीं आ रही है, यूज एआई टूल, लगा दो, फिर पूछो एआई को ये डायग्राम में है क्या, इसका इन्फ्रेंसेस क्या हो सकती है. अपस्किलिंग योरसेल्फ, enhancing your knowledge, that can be done by AI tools very fast. But you cannot directly make use of AI for writing a paper, for drafting a patent. Okay, very well grafted answer, sir. तो सर entrepreneurship related भी आपका background रह चुका है. So for all those budding entrepreneurs who have exceptional ideas but they lack resources, उनके पास funds नहीं है, they do not have many people to contact to convert their idea, their vision into an actual product or a service, how would you guide them how to go about this whole thing of entrepreneurship? For entrepreneurship, if it is a question of generating funds, then the very first foundation statement is to become an entrepreneur you do not require any money. This is the foundation of entrepreneurship. The next, if you really require some amount of money, then the first level is plan your venture in such a way that the money what you have in your pocket, you should be able to manage up to developing a prototype and launching your product. थोड़ा और आगे चलते हैं.
और आगे करना है, थोड़ा और बड़ा करना है, प्रोटोटाइप के लिए ज़्यादा पैसा लग रहा है, देन देयर आर टू वेज. नंबर वन, पिच योर वेंचर इन फ्रंट ऑफ people who are going to support you, like venture capitalist, funders who are going to support you. अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा रहेगा कि शार्क टैंक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने टीवी पर देखा, जहाँ पे आइडियाज को पिच करते हैं, पैसा मिलता है. फैंटास्टिक वे. देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो वेयर यू कैन गेट मनी. ये पहला हो गया. व्हाट इज दूसरा वाला तरीका? दूसरे वाले तरीके में हम लोग बात करेंगे कि जहाँ पे आपको नेटवर्किंग करना है, जिसे हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर. मेरे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, लेट अस कोलैबोरेट. लेकिन वो ऑप्शन में थोड़ा लास्ट में रखूंगा. तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हो तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी भी एक जॉयफुल जर्नी में कन्वर्ट हो जाता है. गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स. देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर सपोर्टिंग द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स. Yes, अभी ये टाइम पे there is this entrepreneurial drive going on throughout the nation. Yes. And a lot of programs that हमारे लेवल पे, जो मे बी आपके टाइम पे शायद से इतने प्रिलिमिनरी नहीं थे, बट हमारे टाइम पे हम देखते हैं कॉलेज ऑल्सो they are pushing us towards doing a lot of entrepreneurial stuff so that we can take forward the nation in many ways. Okay, now since you've had so much experience, आपका इतना ज़्यादा experience है, you've conducted so many things, you have had your hands in many fields, आपने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, and you've had a very vast and joyful journey. तो लेकिन फिर भी if you had to undo something, अगर आपको Control Z का बटन अपनी लाइफ में, which is very unlikely, it does not happen, but अगर आपको opportunity दे दी जाए, तो what is that something that you would change? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. मतलब अभी एआई के जमाने में पॉपुलर बटन आता है कंट्रोल वी. सारी चीजें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, कंट्रोल जेड अंडू करना है. दो चीजें कर सकते हैं. पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की जो प्रोफेशनल ईयर्स है, पहले 8 साल, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन इंडस्ट्री वर्किंग ऑन हार्डकोर टेक्नोलॉजीज. तो शायद मुझे जो मेरे अंदर का जो ट्रेनर है वो उसी समय में अगर मैं जगा देता तो काफी लाइफ अगर चेंज हो सकती थी. एक नंबर 1. और नंबर 2, जब मुझे पता नहीं था कि एक पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क, आईपीआर होता है बेसिकली, ये पता नहीं था. और उस जमाने में मैंने कुछ एआई का प्रोग्रामिंग कर भी दिया एंड विच वाज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली बाय द इंडस्ट्री विद देयर नेम. किया मैंने, एक्सेप्ट किया उन्होंने. तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ओके, वहां पे कुछ कंट्रोल जेड होता तो शायद आज मेरे पास वो सारी आईपीआर मेरे नाम पे होती. ओके, तो थोड़े गिले शिकवे भी रह चुके हैं, बट इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी फॉर यू, आई अज्यूम. ओके, तो एआई का इन्वॉल्वमेंट अभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ तरह से अच्छा भी है, कुछ तरह से बुरा भी है. In some ways it is a best companion that you have, and in some ways it is the worst enemy you could ever have. What's your final verdict? हमें तो पता है कि अच्छी, like positives and negatives, pros and cons is for everything, but what is your final verdict? That is AI a best friend or is it a frenemy? What is it? It's a question of a debate, in fact, but I would definitely like to go on the one side, that is AI as a friend. AI इतनी पावर आज हमें दे रहा है कि जो चीजों के लिए हम शायद घंटों लगा सकते हैं, फिर कुछ दिन या फिर कुछ साल, वो सारी चीजें आज फटक से बिल्कुल क्लिक ऑफ अ बटन है, वी आर गेटिंग इट. तो ट्रीट AI लाइक अ फ्रेंड, ट्रीट AI एज अ टूल, ट्रीट AI एज योर कंपेनियन. अगर हम लोग बात करेंगे कि नहीं AI मेरा दुश्मन है, AI की वजह से जॉब चली जा रही है, इंडिया इतनी बड़ी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, अब मेरा क्या होगा, ये इस सोच को थोड़ा सा हमें बदलना है. अगर AI हमें एक नई दिशा दे रही है तो इंडिया में मैं कहूंगा कि AI का इस्तेमाल करके नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए. AI विल ऑलवेज सपोर्ट यू. I remember in year 2000 there was a big problem
कि ये 1999 से 2000 में सब जब साल बदलेगा तो सारी दुनिया के कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। Y2K फिनोमिना था तब, Y2K, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। Y2K के ऊपर 1 साल तक बहस हुई, सारे कंप्यूटर चले, आज भी चल रहे। फिर उसके बाद में कोविड का पीरियड आया, पूरी की पूरी दुनिया ऑनलाइन चली गई और ऐसा लगा कि शायद ऑफलाइन में कुछ होगा ही नहीं। एक डर लगा कि पूरी दुनिया ऑनलाइन, लेकिन आज भी ऑफलाइन का इंपॉर्टेंस है। आने वाले सालों में AI विल सपोर्ट ह्यूमन बींग्स, बट डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिप्लेस 100% ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। अब हमारे हाथ में है कि उस AI को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो गलती हमारी है, AI की नहीं है। सो डोंट ट्रीट इट लाइक एन एनिमी, ट्रीट लाइक अ फ्रेंड। At these times जब ऐसी debates होती है, because you said it is a very debatable topic, I always remember robot, चिट्ठी the robot, Rajnikant movie. Yes. And it's so beautifully depicted how AI is so much useful, but only when you have limitations to the way and the kind it is used. Yes. So it was a very insightful answer. So I would like to know कि you do appreciate AI integration into classrooms. And आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंस्ट्रक्टर्स में भी थोड़ा लैग कर रहे हैं, बट दिस दे शुड इम्प्लीमेंट, कि आप कैसे AI जनरेटेड कंटेंट अपनी मासेस को या अपने ऑडियंसेस को, जो उनकी क्लासरूम्स होती है, उसको वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करें? Okay. अगर AI को इम्प्लीमेंट करना है फॉर द एजुकेटर्स, देयर आर वैरायटीज ऑफ वेज बाय विच दिस इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन. Number one, a teacher goes into a classroom for teaching to 70, 80 odd students. It becomes difficult for the teacher to find out who is a quick learner, who is a slow learner. AI tools can be used to find out the learning capabilities. Number two, AI tools can be used by the teachers for understanding the way the students are learning. Some of the students are auditory, some of the students are having a visual kind of learning. Find out what kind of intelligence they have. There are total 9 types of intelligences. Accordingly, if the questions are required to be framed, accordingly, if the assessment is required to be done, then AI can support you. Okay, out of say 75 students, there are 27 students who are auditory. तो ऑडिटरी लोगों के लिए मुझे असाइनमेंट तैयार करवा के दो, AI will really help you. ऑडिटरी के लिए सुनने वाली असाइनमेंट ज्यादा होगी, विजुअल के लिए कुछ पेंटिंग वाली, स्केच वाली, वीडियो वाली असाइनमेंट हो सकती है। जो नंबर स्मार्टनेस है उनके लिए मैथमेटिकल हो सकती है। AI विल डेफिनेटली हेल्प इन दैट वे। अभी तो इमीडिएटली तो शायद कर नहीं पाएंगे, बट द वे द AI इज प्रोग्रेसिंग, डे विल कम इन अ क्लासरूम वेयर AI विल बी रियली हेल्पिंग द प्रोफेसर्स टू इफेक्टिवली एंगेज देयर स्टूडेंट्स। So, well, we come to the end of our very first podcast. Very genuinely thanking you, sir, कि आप अपने इतने hectic schedule से आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हो, and you're giving us the liberty to ask you questions and to gain insights from your knowledge. You have so much more to give us, and we are looking forward to more such collaborations with you. And also, the thing that I'm taking away with this podcast is mainly that I want to be in one of your lectures. I really like आपका कैसा, your way of teaching is very different from the conventional way. That is not something that we get अभी के time पे. So really looking forward to that. And for all the viewers, I would like to thank every one of you for tuning in and listening to this podcast and seeing us as well. I hope you learned a lot, because of course I did. And thank you everyone. Thank you, Kasak. Indeed, you have done a marvelous job asking so many insightful questions, and I'm happy to share whatever experience I have today. And we really look forward that this AI penetration to happen in the society in a much more positive way. I really express my good wishes to you, your club, and looking forward to penetrate this momentum in the society on a larger scale.